गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 फॉर द ट्रिप। ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है फटाफट से जाके। एक्सपो के लिए 10 बजे एक्सपो खुल जाता है। अभी 9:45 ऑलरेडी हो गए हैं। मुझे मेट्रो लेनी है यहाँ से, सो आई जस्ट रश फटाफट। आज कैब नहीं ले पाएंगे क्योंकि जाना बहुत दूर है, कैब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही है, तो विल ग्रैब अ मेट्रो एंड एक्सपो में मिलते हैं। आ गया और ये पास ले लिया है हमने एक राउंड ट्रिप का। थोड़ा सा अभी ज़्यादा ही लेट चल रहा है, 10-11 हो चुके हैं, तो लेट्स सी कि कैसा रहता है एक्सपो। दिस इज द मैप फॉर द एक्सपो 2020। जाना कहाँ है बस वो फिगर आउट करना है, बाकी तो सब सेट है। ओके, तो हमने क्या क्या मार्क किया है? लग्जमबर्ग, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएसए और I guess yes. I think New Zealand is not. Okay. तो यार अब हम आ गए हैं यूएई के पवेलियन में। बाहर बहुत देर वेट करना पड़ा हमें। अलग ही कुछ डोम स्ट्रक्चर है इनका। ये मेन डोम है, यहाँ पे शाम को कुछ शोज़ वगैरह होते हैं और बिल्कुल ही उसके बगल में यूएई का है। तो हमें लगा सबसे पास है, शॉर्टेस्ट पाथ लगाया हमने, सबसे पास यही डेस्टिनेशन मिली। हमने कहा इसको तो देख ही लेते हैं, और इसकी काफ़ी तारीफ भी सुनने को मिल रही थी। तो 5 में से पहले डेस्टिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। आई होप के अंदर कुछ तो यूएई वालों ने कुछ बढ़िया करा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग पाकिस्तान का भी देखेंगे और इंडिया का भी देखेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि आसपास की कंट्रीज से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे तो लेट्स सी। असली रेत है यहाँ, you can like touch it. It's a real sand, no? It's a real sand. जिनने sand dunes बनाए हैं। Which actually the 7 Emirates came together in the 72, all of them, as one country. Enjoy it. One color on the ground, but the more people we have, the more colors we can see. Even the music will become louder, and we start smelling the Arabian perfumes in here. ओके, तो यहाँ पे यार कंसेप्ट ये है कि जितने ज़्यादा लोग इस सरफेस पे जाएंगे उतने ज़्यादा कलरफुल रिंग्स आएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्मेल द अरेबियन परफ्यूम। यहाँ पे आप इन बच्चों को देख पा रहे हो। अरे ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। हमने एनिमेटेड यूएई की हिस्ट्री देखी, वो सुपर कूल। ऐसे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इन्होंने सरफेस से ऊपर उठा दिया एंड यू कैन सी क्वाइट इमर्सिव स्क्रीन। मैं ज़रूर क्लिप्स डालूंगा इसकी, बस टू गुड, टू गुड। पवेलियन डन, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस। आई बिलीव कि यूएई पहला देखना चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी दुबई में हो, यू कैन रिलेट टू फ्यू थिंग्स। और जो भाई ये लास्ट में वो थिएटर एक्सपीरियंस था, वो तो काफ़ी क्रेजी था। आई एम नॉट श्योर वो क्या था, 3D था, 4D था, क्या था। इट वॉज टू गुड। Before moving forward, I would like to thank the sponsor of this video, that is Cryo.2.
So I personally believe that all the students, instead of focusing just on how to get a job, they should focus on how to become a better engineer. And I believe personally that in order to become a very good engineer, you should be good at problem solving. And what's the better way to learn problem solving than project based learning? And Cryo.do is bringing you a very immersive experience on project based learning. So at Cryo.do, you can have specific tracks which are going to focus on exact real life projects, real life work experience, and job ready portfolios. Cryo.do is something that is recognized by the industry. Even with companies like Flipkart, they run their own programs where they train the employees and the new software engineers of Flipkart. And you can get a similar experience by enrolling to their programs, which are basically focused on project building, project based learning, where you are going to be enrolled in one of the projects which are going to be a very industry ready project, and you are going to realize that what caveats, what checks are being done when you exactly build a similar product in the industry. You are going to have a similar team, you are going to have similar features to implement, and that is going to give you a very immersive and skill based learning, right? The whole program is much more practical oriented rather than theory. So what are you waiting for? You can use the code in the description section to avail a 10% discount on their programs and start your project based learning with Cryo.do. इस पेविलियन में अभी हम लोग आ गए हैं लग्जमबर्ग में. ये कैंड वाटर मिला है जस्ट फॉर हेल्पिंग एवरीवन, राइट? तो यार लग्जमबर्ग का पवेलियन तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होता है जो उन्होंने साइंस वगैरह में इनोवेशन करी है. मेन फैक्ट मुझे लगा कि बुर्ज खलीफा बनाने के लिए द स्टील एंड द ग्लास वाज इंपोर्टेड फ्रॉम लग्जमबर्ग. वेरी गुड. ये कोई स्लाइड है जो यहाँ की मेन अट्रैक्शन है. एंड कुछ भी कहो, या विल डू. द शिट इज़ गेटिंग रियल. हम लोग इस स्लाइड में जा रहे हैं, कुछ तो मज़ा आने वाला है. मेरी तशरीफ के जो 64 टुकड़े हुए हैं ना भाई अभी, ओह शिट भाई, ऐसे 90 डिग्री भाई, वो 90 डिग्री है भाई. ऑल अलोंग आई वाज लाइक मैं मर जाऊंगा भाई, मैं तो मर जाऊंगा भाई. भाई शिट डूड. गाइस इंटरेस्टिंग पार्ट, बाकी लोग अभी वॉशरूम वगैरह गए हैं. मेरे को लगा भाई मैं और एक्सप्लोर करूँगा, तो मैं आया हूँ यूक्रेन के पवेलियन में. मेरे को था यार यूक्रेन का पवेलियन ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज द सिचुएशन दे आर इन, आई वांट टू सी व्हाट ग्लोरी दे हैव, और क्या हम लोग आगे चल के मिस करेंगे. यूक्रेन इज समथिंग आई डेफिनेटली वांट टू सी. सैल्यूट टू द ब्रेव प्रेसिडेंट. कुछ इन्होंने इंटरेस्टिंग बाइक्स वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे, ई व्हीकल्स वगैरह कोई लोग. काफ़ी लोग यूक्रेन के सपोर्ट में लिख रहे हैं. ये स्पेशल मैसेज यार हमने लिखा है यूक्रेन के लिए. राइट, लेट्स सी वेयर वी कैन पुट इट. आई सी सम स्पेस ऑन दिस वॉल. यस देयर इज. शॉर्ट आइसक्रीम ब्रेक लेना पड़ रहा है, काफ़ी धूप है और काफ़ी महंगी आइसक्रीम है, तो ठीक है.
So guys, we are at the Saudi Arabia pavilion. यहाँ पे इन्होंने ऐसे ऑपोजिट ग्लास लगाया हुआ है. You can see लोग वहाँ नीचे हैं, बट ऐसा लग रहा है इनके पवेलियन में ज़्यादा लोग आते नहीं थे, तो इन्होंने बस ऐसे मिरर लगा दिया. वो था ना कॉलेज का इवेंट होता है, एंड देन जिन बच्चों को नहीं भी जाना टीचर उनको भी बैठाती है कि भीड़ लगे, तो वो वाला इफेक्ट है. बट लुक्स कूल. फाउंटेन शावर टाइप का है. You have to get out of it without getting wet. Seems interesting. तो भाई का टैलेंट देखा तुमने. बिल्कुल एक ड्रॉप पड़े बिना मैं अंदर और बाहर हो गया, बिल्कुल ऐसे सोबर. तो अभी हम अंदर आ गए हैं सऊदी अरेबिया के. तुम शक्ल देख पा रहे होगे, एकदम ऐसे टैन हो गई है. रियली हॉट टुडे आउटसाइड. लेट मी शो यू सम स्नैप्स. गाइस, आई डोंट नो कि आपको कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट दिस इज समथिंग रियली कूल. गाइस, ये जो तुम्हें गाड़ी दिख रही है बकचोदी करती हुई, ये किसी का खाना डिलीवर करने जा रहा रोबोट है. अभी यहाँ पे एक बच्चा इसके सामने खड़े होकर पागल हो रहा है, क्या कर रहा है. तो गाइस, हम लोग फाइनली 1 आवर एग्जैक्ट वेटिंग के बाद इजिप्ट के पवेलियन में आ गए हैं. Architectural accomplishment of Egypt the ancient Egyptian civilization that fascinated the world. Right now, the future, new cities have always been a key factor in Egypt's development across time. Now, Egypt reaches the brightness and greatness of its very beginnings. The rise of I guess guys, this is some kind of Egypt wheat crop or something. Statue of a king. Yes. So guys, we are in the Ethiopia pavilion. इन्होंने एक्चुअल थोड़ी मेहनत करी हुई है अपने कल्चर को दिखाने के लिए. काफ़ी सारे पवेलियन ऐसे जिन्होंने बहुत क्रेजी वीडियोस डाली हैं. They have at least shown their culture and everything. So guys, this is the Gotham City pavilion. So you can see some Batman references, some investigative material. Quite nice. Hello. अच्छा, ऊपर वो करने से वो ब्लश कर रहा है. It's my pleasure to meet you, my dear.
तो गाइस ये स्पेन का पवेलियन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है डेडिकेटेड किया गया है हाउ नेचर कैन बी सेव्ड, डिफरेंट मेजर्स, यू कैन सी मल्टीपल थिंग्स है। This is what you should eat with each and every. देखो यहाँ पे इन्होंने फूड पिरामिड टाइप का बनाया हुआ है कि आपको क्या डेली खाना चाहिए, क्या वीकली खाना चाहिए, क्या उससे और डिले में रहना चाहिए। दिस इज लाइक वेरी ऑनेस्ट वेरी वेरी This is a hyperloop, conceptual hyperloop. emissions बहुत कम होंगे इसकी। Low CO2 emissions यहाँ, हाँ। लेकिन दिखाया था कि इसकी कितनी होती है और अब इससे कितना कम है। गाइस ये पूरा का पूरा पैनल मशरूम से बना हुआ है। Sustainability at a definition। वैसे देख ये बस है अम्ब्रेला और तुम्हें अम्ब्रेला के ऊपर प्रोजेक्शन देख पा रहे होगे। Everyone's umbrella has a projection। भाई नीदरलैंड का तो कंसेप्ट ही अलग था। कुछ तो वो लोग डेजर्ट के एयर से वाटर निकाल रहे थे। भाई मेरा रूममेट तो ऐसा पानी वेस्ट करता है क्या ही बताऊँ। यहाँ पे लोग पानी बचा रहे हैं, उसको थोड़ा वीडियो देखना चाहिए ये वाला। बट वो टू कूल, ऐसे अम्ब्रेला के ऊपर प्रोजेक्शन। मेरे को ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था कि पानी कैसे बना रहे हैं वो, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि सारे अम्ब्रेला के ऊपर वो प्रोजेक्शन कैसे ला रहे हैं सेम। तो आई वाज सीइंग कि कौन सा कैमरा, कौन सा लाइट, कैसे क्या सेंसर लगा रखा है, मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। बट नीदरलैंड का छोटा है, इट वाज बट टू गुड एंड टू बी वेरी पर्पसफुल। तो यार डे एंड होने को आ रहा है, ऑलमोस्ट इट्स व्हाट 8:15 इंडियन टाइम में, ऑलमोस्ट 9:45। तो गाइस फाइनल या सेकंड लास्ट कह सकते हो पवेलियन पे हम लोग आ गए हैं। स्वीडन डे एंड होने वाला है, इट्स ऑलमोस्ट 8:18। तो इंडियन टाइम में तुम लगा लो ऑलमोस्ट 9:45 9:48 इश हो रहे होंगे। तो ब्राज़ील और स्वीडन हम लोग कवर करेंगे एंड देन विल गो। स्वीडन की थीम है फॉरेस्ट, तो लेट्स सी। तुम आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड आल्सो, सो यू गाइस कैन सी दिस राइट। तो देखो यार पूरा फॉरेस्ट वाली थीम पे है। स्वीडन इज़ अ कंट्री जो काफ़ी बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट में है, तो उन्होंने ऐसे फॉरेस्ट में से ट्रीज़ वगैरह के उसके ऊपर स्मार्ट इंडस्ट्री बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर चीज़ें बनाई हुई हैं। बचपन में बहुत पढ़ाते थे भाई, कुछ समझ नहीं आता था। पढ़ा होता तो शायद दुबई एक्सपो में सिविल इंजीनियरिंग के काम तो ज़रूर आता, बट सिग्निफिकेंटली गुड। Time for the last, I would say, pavilion. ब्राज़ील जाएंगे, ठीक है। देखो ब्राज़ील आ गए हैं। तो अमेज़ॉन के फॉरेस्ट वगैरह से कवर्ड है, ब्लैक सी से आसपास बाउंड्री कवर्ड है, तो उन्होंने उसका थोड़ा सा थीम देने की कोशिश करी हुई है। लेट मी शो यू सम अमेजिंग शॉट। थोड़ा सा तो ग्रैंड लग रहा है, लेट्स सी।
ये इन्होंने कुछ तो बढ़िया प्रोजेक्शन लगाई है, कुछ तो बीच जैसा इफेक्ट आ रहा है। ऊपर भी देख सकते हो अच्छी रिफ्लेक्शन है। तो अगेन नेचर को दिखाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता हुआ। तो चलो यार ब्राज़ील के ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। देने की कोशिश करी। देखो मैंने जितने भी पवेलियंस वगैरह देखे सब में एक ही चीज़ कॉमन थी कि किसी ना किसी तरह बेटर डेवलपमेंट कैसे करी जाए, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनोवेशन लगाया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ा कीन था कोई ऐसा पवेलियन देखने के लिए जहाँ पे कुछ तो ऐसे फाड़ू CS वाली टेक हो, बट ये देखने के बाद माई पर्सपेक्टिव चेंज कि यार लाइक यूजिंग थिंग्स फॉर अ बेटर फ्यूचर इज़ अ बेटर थिंग। तो मतलब थोड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस लगा, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो मेरे को तो काफ़ी वर्थ लग रही है। कर रहे हैं कुछ एक शो हो रहा है, कुछ तो और भी शो है। तो दैट्स अ रैप, वी आर गोइंग टू एग्जिट। एक इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया, यहाँ पे ऐसे कैंस में पानी मिल रहा है फॉर रिसाइक्लेबल स्टोरेज। प्लास्टिक भी होता है कई हद तक, बट प्लास्टिक प्रमोट नहीं करना चाहते होंगे, तो इंटरेस्टिंग। तो 900 INR अगर तुम लगाओ, उसमें काफ़ी वर्थ एक्सपीरियंस है। थोड़ा रेट्स गिर गए इस टाइम, सो इट्स